Let us take the example. Say income is rupees 2000 and the quantity demanded is 10 units. Income rises to 4000 rupees and quantity demanded increases to 30 units. जब आय बढ़ जाती है तो मांग भी बढ़ गई. Now let us find out change in quantity and change in income. Change in quantity is Q1 minus Q. So 30 minus 10, 20 units. And change in income is Y1, that is 4000 minus 2000. So income कितनी बढ़ी है by 2000. This is the change in income. So we put the values here in this formula. We can put the values. So delta Q is 20 and delta Y is 2000. This is 2000 multiplied by Y. This is 2000 and divided by Q. Q is 10. Y और Q हमने initial लेना है before the change. Right. Now this 2000 is cancelled here and this is 2. So income elasticity of demand is 2, which means it is greater than unitary. यानी कि highly elastic demand जो है income elasticity is very high. Now let us understand the types of income elasticity of demand. मांग की आय सापेक्षता के कितने प्रकार हैं, कितनी कैटेगरीज हैं? There are 3 parts. One is positive income elasticity of demand, second is negative income elasticity, and third is zero income elasticity. Positive income elasticity, which shows there is positive income demand relationship. जब आय के बढ़ने से किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है और आय के कम होने से किसी वस्तु की मांग कम हो जाती है. जनरली जो नॉर्मल गुड्स है उनमें ऐसा होगा, whenever income rises the consumer will increase the demand for the commodities and whenever income falls consumer will reduce the demand for the commodities. So the income demand relationship becomes positive, which we can show here with the help of a diagram. On x-axis we have quantity demanded and on y-axis we have income. For example, if this much is the income OY is the income, this is the quantity demanded. If income increases to OY1, increase हो गया, so demand also increases. So first this was the income, we have point A, this was the income OY and quantity demanded is OQ. Now income rises to OY1 and demand also increases. So दोनों को match करेंगे जब हम, you get this point B. So by joining these 2 points, you get an upward rising curve, which shows upward rising curve means that the income demand relationship is positive. Income increase है तो demand increase है. अगर income fall है, मान लीजिए पहले हम B point पे हैं, तो income OY बनती तो demand OQ बनती. If income falls from OY1 to OY, then demand falls from OQ to OQ, OQ1 to OQ, कम हो जाएगी. तो सेम डायरेक्शन में जब चेंज होगा इनकम का और डिमांड का, पहले इनकम चेंज होगी फिर डिमांड चेंज होगी, तो सेम डायरेक्शन जब होगा दैट इज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब ये हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा कर्व का स्लोप है ये कैसा होगा. सो दैट वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ डिग्रीज ऑफ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. राइट, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी मींस व्हेन द इनकम डिमांड रिलेशनशिप इज पॉजिटिव. लेकिन वो कैसा है? यूनिटरी इलास्टिक है, ग्रेटर देन यूनिटरी है या लेस देन यूनिटरी है? यूनिटरी इलास्टिक कैसे होगा? व्हेन द परसेंटेज चेंज इन इनकम ब्रेक्स एन इक्वल परसेंटेज चेंज इन डिमांड. जब जितने प्रतिशत आय में परिवर्तन हुआ है उतने प्रतिशत ही मांग में परिवर्तन हो जाए. अगर इनकम 100% बढ़ी है मांग भी 100% बढ़ जाए. अगर इनकम 20% कम हुई है डिमांड भी 20% कम हो जाए. सो दैट इज द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी कि इनकम इलास्टिसिटी 1 के बराबर होगी. सेकंड है ग्रेटर देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, इकाई से अधिक आय लोग जो है व्हेन आ गिवन परसेंटेज चेंज इन इनकम brings a greater percentage change in demand. जबकि आय में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग में उससे अधिक प्रतिशत परिवर्तन हो जाए
तो ग्रेटर देन 1 हो गया, मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ इनकम इंक्रीजेस बाय 100%, डबल हो गई इनकम आपकी, और जो आपकी डिमांड है दैट इंक्रीजेस बाय 200%, ठीक है, उससे भी ज्यादा बढ़ गई है। इट मीन्स इफ इनकम फॉर एग्जाम्पल फॉल्स बाय 10%, देन डिमांड फॉल्स बाय 20%, तो जो भी इनकम का चेंज है वो कम है और डिमांड में होने वाला चेंज उससे ज्यादा है, तो ग्रेटर देन 1 हो गया। थर्ड क्या हो जाएगा इसमें, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, when a given percentage change in income brings a comparatively lesser percentage change in quantity demanded, जब आय में जितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है मांग में उससे कम प्रतिशत परिवर्तन होता है। आय आपकी 100% बढ़ी है और मांग आपकी जो है वो 50% की इंक्रीज हुई है, राइट, तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम होगा। यहाँ हम लिख के समझ सकते हैं आपका यूनिटरी में जो इनकम यहाँ ले लेते हैं चेंज इन इनकम, ये है आपका चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, इनकम 100% बढ़ी है और डिमांड भी 100% इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी यूनिटरी हो गई चाहिए, ठीक है। जब इनकम में होने वाला चेंज 100% है और डिमांड में होने वाला चेंज 200% है, ये तो इक्वल टू 1 हो गया, ये ग्रेटर देन 1 हो गया। और थर्ड, जब इनकम में होने वाला चेंज 100% है लेकिन डिमांड में चेंज होने वाला 50% है, तो ये लेस देन 1, ठीक है। अपने याद रखना है कि हमेशा इनकम में पहले चेंज होगा 1 थिंग। सेकंड कि जो परसेंटेज चेंज डिमांड में है अगर वो इनकम के बराबर है तो इक्वल टू 1, अगर चेंज इन डिमांड इससे ज्यादा है तो ग्रेटर देन 1, अगर चेंज इन डिमांड इनकम में चेंज से कम है तो लेस देन 1। सो दिस ये आपकी पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गई और साथ ही ये उसकी मेन डिक्रीज हो गई। नाउ लेट अस कम टू द नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की ऋणात्मक आय लोच, ऋणात्मक सापेक्षता, negative, as is clear from the name, when the income demand relationship becomes negative, जो given goods हैं, inferior goods हैं, कौन से goods? When the income increases, the consumer reduces the demand for those commodities. कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम inferior समझते हैं, तो होता क्या है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो उनकी डिमांड बढ़ाने की बजाय हम उनकी डिमांड को कम कर देते हैं, so that income demand relationship becomes negative, right? So इस केस में आपका जो टाइप है that will get a negatively sloped curve, y axis पर income और x axis पर quantity demanded. So like if this is the income and this is the quantity demanded, Q हमारी quantity demanded है, तो दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं you get this point. It means when income is OY, demand is OQ. So we get the point A. Now income increases to Y, OY1. Income has increased, but the demand has fallen. Q1. Okay? Income बढ़ी है और demand जो है आपकी कम हो गई. So you get point B. Demand has fallen. So negative relationship and you get a negatively sloped curve. So when the income demand relationship becomes negative, this is the negative income elasticity of demand, ठीक है। और ये कब होगा? जब वस्तु inferior हम समझते हैं या given goods जो है वो उनके केस में ऐसा होगा। यहाँ पर भी तीनों डिग्रीज as it is आएंगी, unitary, greater than unitary and less than unitary. When the percentage change in income is equal to percentage change in, ये लिख लेते हैं, ये change in income है, ये change in quantity demand, तो जब दोनों बराबर होंगे तो इलास्टिसिटी आपकी 1 के बराबर, राइट। जब परसेंटेज चेंज इन इनकम से ज्यादा परसेंटेज चेंज हो गया डिमांड में तो ग्रेटर देन 1। मान लीजिए इनकम 100% बढ़ी है, डिमांड 100% कम हो गई, ठीक है, तो चेंज बराबर हो गया इक्वल टू 1। यहाँ पे नेगेटिव ऑपोजिट रिलेशनशिप शो कर रहा है। अगर इनकम 100% बढ़ी है लेकिन डिमांड जो है 200% कम हो गई, जितना इनकम बढ़ी उस परसेंटेज से ज्यादा 200% कम हो गई तो ग्रेटर देन 1 होगी। और अगर इनकम आपकी 100% बढ़ी है और डिमांड केवल 50% ही कम हुई है तो लेस देन 1, ठीक है। तो 3 डिग्रीज हो जाएंगी नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। थर्ड एंड लास्ट केस इज जीरो इनकम इलास्टिसिटी।
शून्य I note. Zero income elasticity means when the demand for a commodity is not related with the income of the consumer. आय बढ़े या कम हो, उस वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता. ऐसी कौन सी गुड्स है? लाइक योर सॉल्ट है, मैच बॉक्सेस हैं, पेन पेंसिल्स है, इवन योर सोप्स हैं, टूथपेस्ट है. These are the basic necessities. तो यहाँ पे इनकम बढ़े या कम हो, इन चीजों की डिमांड में कोई अंतर नहीं आता. So when the income and the demand for goods quantity is unrelated, then becomes the zero income elasticity of demand. So we can have a diagram here. On y-axis we will take income and quantity here. So when income is say OY, quantity demanded is OQ. So you get this point A. Income increases to OY1, but the demand is OQ. ये लाइन ऊपर चली जाएगी, you get point B. Income increases further, but the demand is OQ. Same. So you get a vertical curve. Income is increasing or income is decreasing. Which way you can explain? But the quantity demanded same and no change. So that is called the zero income elasticity of demand.